Good morning, dear students. Welcome back in your computer class once again. As I have already told you that in your exam, 60 marks programs will be there. 60 marks program and 40 marks your theory section will be there. And inside your theory section, your question answers, your output questions and general conversion questions will come. So that will lie under your 40 marks. But 60 marks are allotted for your programs. So in this video, we are going to discuss the programs. Now you know already that in the programs we can provide the input in three ways. We can provide the input in three ways. What are those three ways? First is by using assignment. By using assignment statement that you have already done in your 8th class. In 8th class, whatever program we have made that were using the concept of your assignment statement in which we directly assign the values into the variables. Clear? What is assignment statement? Assignment statements are those statements in which we directly assign the values into the variables. And that program which you will make will actually work only for those fixed values. यानी कि जो आपने वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं वो सिर्फ उसी के लिए वर्क करता है और किसी वैल्यू के लिए वर्क नहीं करेगा. अगर आपको किसी और वैल्यू के लिए वर्क कराना है देन यू हैव टू मेक द चेंजेस इनटू द वैल्यू. फाइन. देन नेक्स्ट वन इज योर यूजिंग स्कैनर क्लास. यूजिंग स्कैनर क्लास. ओके. द थर्ड वन इज using input stream reader class. Input stream reader and buffer reader. So totally there are three ways. Fine. One more way is there, that is your function argument. That is your what? Function argument. Clear hai? Four ways are there. So here in this video we will discuss this second approach, that means assignment statement. So let us start with the very first program. Program number 1 says what? कि write a program in Java to assign word. आपको word बहुत carefully read करना है. उसने बोला assign. इसका मतलब क्या है? This program you have to make using assignment statement and display the name, class, subject, school and city of a student. Means what? You need to assign the values into all these variables. कौन कौन से variables हैं? Name, class, subject, school and city. ठीक है. And after assigning the direct value into the variables, you will then print it. तो आपको इस तरीके से आपको work करना है इसमें. ठीक है. Now you will start the class. अब देखो एक और चीज़, वेन एवर वी नीड नॉट टू प्रोवाइड द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड देन देर इज़ नो नीड टू इम्पोर्ट द पैकेज. पैकेज कब इम्पोर्ट कराते हैं? जब हम प्रोग्राम बनाते हैं स्कैनर क्लास से या इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास से. अगर हम प्रोग्राम स्कैनर से बनाते हैं देन वी नीड टू इम्पोर्ट द पैकेज. द नेम इज़ वॉट? यूटिल पैकेज. इफ़ आई विल मेक द प्रोग्राम यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर then I have to use which package? IO package. Remember it, this is very important point, importing package. But if we are directly assigning the values then there is no need to import the package. We will directly start our program by writing public class and the name of the class. ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या किया है? देखिए यहाँ पर हमने एक कमेंट लिखा है. ये कमेंट आपकी बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, a sample program. Now I already explained what are comments. Comments are some kind of statements which makes or which clarifies your code, which makes your understandability more clear. जो आपके प्रोग्राम को समझने में आपकी हेल्प करते हैं वो होते हैं कमेंट्स. तो कमेंट्स जो होते हैं वो भी सिंगल लाइन और मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स होते हैं. अब हम इसमें डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि व्हाट आर द कमेंट्स एंड हाउ मेनी टाइप्स एंड हाउ टू डिफाइन इट, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये क्या है? कमेंट है एंड कमेंट आर नेवर एग्जीक्यूटेड. ठीक है. तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं. नाउ सी वी आर राइटिंग पब्लिक क्लास बायोडेटा. क्लास नेम हमने क्या लिया है? बायोडेटा. ठीक है. बायोडेटा के बीच में आई कैन नॉट राइट लाइक दिस बायो एंड डेटा.
I cannot write like this because it says what, because in Java there is a rule that identifier names do not have space in between. आइडेंटिफाई नेम्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये रूल है जावा के अंदर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे बायो स्पेस डेटा देन इट इज़ द एरर। तो आपको अगर सेपरेट करना है तो आप कैसे लोगे, बायो अंडरस्कोर, दिस इज द साइन ऑफ अंडरस्कोर नॉट डैश, तो बायो अंडरस्कोर डेटा। देन यू विल open the class by writing this opening bracket. Moving on to the next page, look at here. Then next step is after opening of the class we write what, public static void main. Remember one more important thing, do not use the short forms in the exams. Do not use the short form in the exam. Just like normally what we do, we are habitual of writing this public static void main PSVM, हम जनरली ये लिखते हैं कॉपी में। एंड फॉर SOPLN system.out.println के लिए हम यूज़ करते हैं SOP और SOPLN, बट रिमेंबर इट विल नॉट वर्क इन द एग्जाम्स, यू विल लूज़ योर मार्क्स फॉर इट, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ध्यान रखना है आपको ये चीज़, तो कंप्लीट स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको लिखना है। So public static void main string args, then the opening bracket of main function. अब हमें क्या क्या चीज़ें इनपुट करानी थी, क्या क्या चीज़ें असाइन करनी है। फर्स्ट इज़ योर नेम, देन योर क्लास, क्लास का मतलब दे हैव टेकन ए स्टैंडर्ड STD, देन योर सब्जेक्ट, देन योर स्कूल एंड योर सिटी नेम। तो आपको पता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या होंगी, स्ट्रिंग टाइप की होंगी। क्यों, क्योंकि ये सारी क्या है, मैसेज की फॉर्म में है ना। जैसे कि यहाँ देखिए अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार इज़ अ नेम, है ना। तो नेम किस में आता है, हमेशा स्ट्रिंग में आता है, तो वी हैव टेकन है स्ट्रिंग नेम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मीन्स योर क्लास, ठीक है। बट आप एक चीज़ ध्यान रखना, हमने यहाँ पे क्लास क्यों नहीं लिया है, हमने यहाँ पे STD लिया है, क्लास नहीं लिया, बिकॉज क्लास इज़ अ कीवर्ड। क्लास इज़ व्हाट, इट इज़ अ कीवर्ड। आपको याद है फर्स्ट, ये यहाँ पे देखिए, look at here, class is a keyword which is used to declare a class, so I cannot take the name of the variable as a keyword, हम नहीं ले सकते ना। इसीलिए हमने यहाँ पर देखो क्वेश्चन में उसने क्लास के लिए ही बोला है, बट हम क्लास को यूज़ तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, स्टैंडर्ड STD, फाइन। एंड वी आर टेकिंग 9th D। अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते थे कि int STD, बट इन दैट केस स्टैंडर्ड आपको किस में लेना पड़ेगा, न्यूमेरिक में, दैट मीन्स लाइक 9 इन दिस वे। इफ़ यू आर टेकिंग लाइक दिस देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, लाइक दिस, ओके। बट इफ़ यू आर राइटिंग इन दिस वे 9th, तो अब ये बन जाएगी स्ट्रिंग, तो यू हैव टू टेक इट इनटू डबल क्योट्स, और फिर ये किस में आएगा, स्ट्रिंग टाइप में। तो अगर नंबर लोगे तो आप इंटीजर ले सकते हो, इट विल वर्क परफेक्टली। बट अगर आप ऐसा कुछ लिखोगे कि इंट STD इज़ इक्वल टू 9, नाउ इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। क्यों, बिकॉज इंटीजर सेज दैट ओनली नंबर कैन बी देयर इनसाइड स्टैंडर्ड, तो आप 9 नहीं लिख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से, यू कैन राइट 9 इन दिस वे, क्लियर है। नेक्स्ट इज़ व्हाट योर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, और किसके अंदर आएगा, इनटू द डबल क्योट्स। सेम फॉर दिस स्कूल, सेम फॉर द सिटी। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स के नेम गिवन है ना, ये स्कूल के लिए दे हैव टेकन SCH, यू कैन टेक द कंप्लीट नेम लाइक इन दिस वे, स्कूल इज इक्वल टू, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूज़र, वट एवर वेरिएबल नेम यू वॉन्ट टू टेक। वंस यू विल असाइन द वैल्यूज़, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं वैल्यूज़, तो यानी कि इसका जो नेम है किसी भी स्टूडेंट का वो क्या है, अभिषेक कुमार। क्लास कौन सी है उसकी, 9th D। सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्कूल क्या है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। सिटी क्या है, जमशेदपुर। दैट मीन्स दीज वैल्यूज़ आर फिक्स एंड वी आर डायरेक्टली असाइनिंग द वैल्यूज़। तो असाइनमेंट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि असाइनमेंट के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इक्वल। जैसे मैंने लिखा A इज़ इक्वल टू 5, तो 5 वैल्यू किस में कॉपी हो रही है, इनटू A, एंड बाय यूजिंग विच ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन हो गई। अब ये जो वैल्यूज़, ये जो वेरिएबल्स हैं, दैट कंटेन्स द वैल्यूज़ ऑफ अ स्टूडेंट। इन्फॉर्मेशन किसके अंदर है, इन वेरिएबल्स के अंदर है। तो अब आपको क्या करना है, 1 by 1 यू विल प्रिंट ऑल द वेरिएबल्स,
सी। system.out.println, अब ये क्या है आपका मैसेज, क्योंकि ये किसके अंदर लिखा है, डबल क्योट्स में। और ये वाला जो नेम लिखा हुआ है ना, ये आपका ये क्या है, दिस इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल, दिस इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल दैट कंटेन्स द वैल्यू। क्या वैल्यू थी नेम के अंदर, अभिषेक कुमार। तो आपके पास आंसर पता है किस तरीके से आएगा ऑन द आउटपुट स्क्रीन, इट विल कम इन दिस वे, नेम देन कॉलन, क्योंकि ये मैसेज है ना, मैसेज डबल क्योट्स में लिखते हैं, तो ये मैसेज तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। अब ये वाला जो नेम लिखा हुआ है ये मैसेज नहीं है, दिस इज़ अ वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी, नेम वेरिएबल के अंदर अभिषेक कुमार, तो इट विल प्रिंटेड इन द सेम वे, अभिषेक कुमार। क्लियर है। फिर उसी के नीचे लिखा हुआ है SOPLN क्लास। अब देखो क्लास भी डबल क्योट्स के अंदर है, तो दिस इज़ अ मैसेज, तो ये तो एज इट इज़ आएगा लिखा हुआ क्लास, लेकिन क्लास का जो मतलब वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर था, STD के अंदर, STD में स्टोर था ना क्लास, तो हियर 9th D विल गेट प्रिंटेड। In the same way, subject, school and city will get printed on the output screen. You can see the output here. Look at this. This is the output generated. जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या है, इतना पोर्शन, दिस इज़ योर मैसेज रिटन इन डबल क्योट्स, और जो वैल्यूज़ हैं अभिषेक कुमार, 9th D, कंप्यूटर एप्लीकेशन, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जमशेदपुर, दीज आर योर वैल्यूज़। ठीक है। So this is a program by using your assignment statement, and after that at the last you will close your main and your class. Clear? First one. Next example using assignment again. Write a program in Java to find the sum of two numbers, find the output, display the output. अब इसमें क्या है, इसमें भी डायरेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन असाइनमेंट बेसिस पर है, इसमें क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे असाइनमेंट गिवन नहीं है क्योंकि ये हमने असाइनमेंट के अंदर ही पढ़ रहे हैं। अगर आप बुक में देखोगे तो ये जो प्रोग्राम एक्सप्लेन्ड है एग्जांपल्स, ये एक ही टॉपिक के अंदर है, इसलिए हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग इंडिविजुअली रिटर्न नहीं है कि यूजिंग असाइनमेंट। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन असाइनमेंट का ही है। तो इसमें आपको क्या करना है, यू नीड टू असाइन टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखो, पब्लिक क्लास सम, opening bracket, public static void main, opening bracket, up to here it is same. Next step, take the three variables क्यों ले रहे हैं, one variable is used to store the first number, second variable to store the second number, and the third variable which is used to store the sum of two numbers. ठीक है। अब हमने क्या किया है, देखिए इसमें we are directly assigning the values. So we are taking three variables as A, B and C, and C is initially 0 and C is mainly used to calculate the sum of A and B. And because we have not calculated up to here, we have not calculated the sum, so that is the reason I have assigned 0 into it, but it is not compulsory. You can also omit this part, यानी कि you can also write comma C, इक्वल टू 0 लिखना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपका आता है A इज़ इक्वल टू 345, B इज़ इक्वल टू 276, यानी कि दोनों में वैल्यूज़ असाइन कर दी, और उसके बाद में वी अप्लाइड द फॉर्मूला हेयर व्हाट, C इज़ इक्वल टू A प्लस B। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो क्या है, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक जो आप सब लोग करोगे एग्ज़ाम के अंदर, सेमीकोलन। As you know that every statement is terminated by a semicolon in Java. We cannot say even every statement, but 90% means most of the statements in Java get terminated by the semicolon symbol. So यानी कि इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब होगा कि A is equal to 345 and it will be treated as B is equal to 276. ये इस तरीके से है इसका मतलब। ठीक है ना। तो आप कॉमा नहीं लिख सकते यहाँ पे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ सेमीकोलन ही लिखना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से वैल्यूज़ असाइन करते हैं तो आप कॉमा नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेमीकोलन। आप कॉमा किस केस में लिख सकते थे, अगर आप कुछ ऐसा करते, अगर इन दोनों की जगह मैं ऐसे भी कर सकती थी कि इंट
A is equal to 345, B is equal to 276, C is equal to 0. Now here comma symbol is allowed. यहाँ पे अब देखो मैंने बीच में क्या लगाया है, कॉमा. तो इस तरीके से दो तरीके होते हैं यूज़ करने की. अगर आप सिंगल स्टेटमेंट में जहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल्स को वहीं अगर डिफ़ाइन कर दो, यानी कि वहीं उसको इनिशियलाइज़ कर दो, तो आप कॉमा से सेपरेट करते हैं. लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि डिक्लेयर एक लाइन में कर रहे हो और डिफ़ाइन एक लाइन में कर रहे हो, तो आपको लगाना पड़ेगा सेमीकोलन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना है इस चीज़ को. ठीक है. तो अगर एक ही लाइन के अंदर कर रहे हो सब कुछ, डिक्लेरेशन भी और डिफाइन भी, तो एक कॉमा से सेपरेट करोगे, अदरवाइज सेमीकोलन से. देन आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला, what you have to do is print the value of this calculated C. So this is here your message, the sum of two numbers equal. तो the sum of two numbers equal जो है, this is your message here, will get printed same as it is on the screen. तो मैसेज जो स्क्रीन पे है वो क्या आएगा, the sum of two numbers is equal to and then the answer of this, then closing of main, closing of class, and you can see here the final output. In this way it will come. बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इवन यू कैन चेंज द मैसेज ऑल्सो. अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में चेंज कर सकती हूँ. मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैं इसकी जगह पे सिर्फ इतना भी लिख सकती हूँ, सम इज़ इक्वल टू डबल क्यूट्स में प्लस ऑफ सी. फाइन. So here we have completed our today's class. Two programs we have done. In the next class we will discuss the new programs based on the other method or the same method. Let us see. ठीक है. So that's all for today. Thank you.